बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इंट्रोडक्शन। व्हाट आर एक्सप्रेशंस? फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, like and unlike terms, types of algebraic expressions, addition of algebraic expressions, subtraction of algebraic expression, finding the value of an algebraic expression, multiplication a monomial by a monomial. Now, introduction. The word algebra is derived from the Arabic word al-jabr. This term is found in the book written by Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi during 9th century. Algebra is a branch of mathematics that involves letters for numbers. The numbers are the constants. The letters used are called variables. An expression contains the combination of constants, variables together with the arithmetic operators. When two expressions are equated together, we get an equation. Some equations are true for all the values and such equations are called identities. Now, what are expressions? The price of a television set is rupees 2100 and the price of a radio is rupees 850. What is the total price of 5 television sets and 2 radios? We will solve the above problem in form an expression as cost of a television is equals to rupees, क्या लिया उसने? X, and cost of a radio is equals to rupees Y. Cost of 5 television sets is equals to 1 की cost X है तो 5 की कितनी हुई? रुपीज 5x. Cost of 2 radios 1 की Y है तो 2 की कितनी रही? रुपीज 2y. Total cost is equals to cost of 5 televisions plus cost of 2 radios. That is equals to total cost is equals to rupees 5 televisions की है 5x plus 2 radios की है 2y. Now 5x plus 2y rupees. That is equals to rupees 5 multiply by, अब हमें पता है 1 टेलीविजन कितने का है? 2100. तो x की वैल्यू हमने रखी 2100. y रेडियो का कितना है? 850. तो y की जगह क्या रखा? 850. दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 10,500 प्लस 1700 इज इक्वल्स टू रुपीज 12,200. Hence, the total price of 5 television sets and 2 radios is rupees 12,200. Now, next is factors of a term. Consider the expression 7x raised to the power 2 plus 3xy. Here, 7x square and 3xy are the two terms in the expression. The term 7x square is the product of 7x and x. Here, we say that 7, x and x are the factors of the term 7x square. These are the factors where x and x are called the algebraic factors of 7x square. Similarly, 3, x and y are the factors of the term 3xy, where x and y are known as the algebraic factors of 3xy. A term is a product of factors. Term क्या है? Product of factors. Example, identify the terms and list the factors of the expression 15m square plus 7mn. Solution देखते हैं इसका. इसमें दो टर्म्स है हमारी, 15m square and 7mn are two terms of the given expression. Now 3, 5, m are the factors of 15m square. 3 5s are 15 and 7, m, n are the factors of 7mn. Now next is coefficients. Consider the expression 5xy square. The factors of this expressions are 5, x, y and y. Any factor of a term
is called the coefficient of the product of the remaining factors. A coefficient which is a number is called a numerical coefficient. जो नंबर में होता है वो क्या होता है हमारा numerical coefficient. In expression 5xy square, 5 is the numerical coefficient and x is the coefficient of 5y square and y is the coefficient of 5xy. Example करते हैं. Example 1. What is the coefficient of x in the following expressions? A part 5xy plus 7z, B part 17xy minus z square. Solution करते हैं. Expression हमारे दोनों लिखे जाएंगे. Terms with factor x and coefficient of x. 15xy plus 7z. पहले हम लिखेंगे term with factor x जिसमें x है, that is 5xy. तो x को छोड़ के बाकी जो है वो सब x के कोफिशिएंट है, दैट इज 5y. नाउ 17xy माइनस z स्क्वायर में x का टर्म कौन सा है? टर्म्स विद फैक्टर x इज 17xy और इसका कोफिशिएंट क्या है? x को छोड़ के बाकी 17y इज द कोफिशिएंट ऑफ x. नाउ एग्जांपल 2. Identify the numerical coefficient in the given expression. A part 8d square plus 5de minus 7. B part 13p square q minus 7pq square plus 8. सॉल्यूशन करते हैं. एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन लिख लेंगे हम दोनों एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स 8 and 5 दो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें 8 and 5. 8 and 5 are two numerical coefficients of the term 8d square and 5de respectively. नेक्स्ट सेकंड में क्या क्या है हमारे 13 and minus 7. 13 and minus 7 are two numerical coefficients of the term 13p square q and minus 7pq square respectively. Now next is constants. Consider an expression 15x plus 8. The term of this expression are 15x and 8. The second term 8 having no variables as its factor is called the constant term. 8 के साथ कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म. एग्जांपल करते हैं. फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग. सॉल्यूशन करते हैं. ए पार्ट क्या है? 8x प्लस xy प्लस 5. हमें क्लियर पता चल रहा है 5 में हमारा कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म इन 8x प्लस xy प्लस 5 इज 5. सेम बी पार्ट में कांस्टेंट क्या है? -6. कांस्टेंट क्या है? -6 जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है. नाउ like and unlike terms. See the algebraic terms given alongside, classify them into groups based on their variable parts. Minus 3x and 7x, 5z square and 4z square. These terms have same variables raised to the same exponent. नीचे given है 3xy and minus 7xy and 4m and 9m. इधर z इधर x. ये these all are दोनों, ये दोनों लाइक है, ये दोनों लाइक है, ये दोनों लाइक है एंड ये दोनों लाइक है. These terms have same variables raised to the same exponent. Exponent means power भी same है. Given above the terms are called like terms. Terms which have the same algebraic factors, same variable raised to the same exponent are called like terms. Means variable भी same और उनके exponent भी same. Terms which have different algebraic factors are called unlike terms. Example करते हैं. Choose the like terms and unlike terms of the following. Solution करते हैं इसका. First है हमारा 5x square and 7x square. दोनों में क्या है? x square. These are like terms. B part में क्या है? 5ab square and 8ab square. ab square. These are also like terms. C part में क्या है? 3xy square and 7x square y. यहाँ पे हमारा xy square है, यहाँ पे x square y है. ठीक है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स. डी पार्ट 2xyz square,
3z स्क्वायर xy, बिल्कुल सेम है, xy xy एंड z स्क्वायर, लाइक टर्म्स है, तो दीज आर लाइक टर्म्स. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. फर्स्ट इज मोनोमियल. An algebraic expression containing only one term is called a monomial. For example, 8 by 3 ab cube c square, comma, minus 5 ab c square, comma, 6 m square n square, comma, 2x and 5 are all monomials. क्योंकि सभी में एक एक सिंगल टर्म है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है. Now second is binomial. An algebraic expression containing two terms is called a binomial. For example, m cube plus 15, comma, m square plus 9, comma, 5 minus 4x, comma, 2 upon 3 m square plus 1 upon 4 mn square z square are binomials. सभी में कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा है, तो these are क्या है? Binomials, जिसमें two terms हैं. No more. 5 plus 7 is not a binomial because 5 plus 7 is equals to 12, which is a monomial. Now third is trinomial. An algebraic expression containing three terms is called a trinomial. For example, m cube plus mn square cube plus 7, comma, 5x square plus y square plus z square and 3x minus 4y plus 6 are all trinomials. No more. 5 plus 3x plus 7 is not a trinomial because 5 plus 3x plus 7 is equals to 3x plus 12, which is a binomial. Now fourth is quadrinomial. An algebraic expression containing four terms are called a quadrinomial. For example, a square plus b square plus c square plus 7, comma, xy plus yz plus zx plus xyz and x cube plus y cube plus z cube plus 3xyz are all quadrinomial. Now fifth is polynomial. An algebraic expression containing two or more, दो से ज़्यादा terms is called a polynomial. It follows from the above definition that binomial, trinomial and quadrinomial etc. are polynomial. ये सारे क्या हैं? Polynomials. Now example करते हैं. Identify the monomials, binomials, trinomials and quadrinomials among the following algebraic expression. Solution करते हैं. फर्स्ट वाला चेक करो क्या क्या है. हम अलग अलग क्या बना लेते हैं, इनकी कैटेगरी बना लेते हैं. मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल. फर्स्ट वाले में देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 है, तो दैट मीन्स वो क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है हमारा क्वाड्रिनोमियल. सेकेंड वाले में क्या है, सिंगल टर्म है, तो वो मोनोमियल में आ जाएगा. थर्ड वाले में कितनी है, अगेन 4 है, तो वो भी किस में आ जाएगा, क्वाड्रिनोमियल में आ जाएगा. फोर्थ वाले में 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स में आ जाएगा. फिफ्थ वाले में 3 टर्म्स है, अगेन ट्राइनोमियल में आ जाएगा. सिक्स्थ वाले में 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल में आ जाएगा. सेवेंथ वाले में 1 टर्म है तो मोनोमियल में आ जाएगा. एट्थ वाले में 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल में आ जाएगा. एंड लास्ट वाले में सिंगल टर्म है तो वो किस में आ जाएगा, मोनोमियल में आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. इन द फॉलोइंग राइट डाउन द पेयर्स विच कंटेन्स लाइक टर्म्स. देखो किस किस में सेम है, जैसे फर्स्ट वाला सेम है, सेकंड वाला डिफरेंट है, नेक्स्ट सेम है और लास्ट वाला क्या है, डिफरेंट है. तो इनको आप चूज कर सकते हैं इजीली, लाइक और अनलाइक टर्म्स. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. There are 2 methods of adding algebraic expressions. These are horizontal method and column method. First is horizontal method. Procedure देखेंगे. First, arrange the terms of all the algebraic expression in a horizontal line. Second, write the like terms together and add their coefficients. Example करते हैं. Add 7x square plus 5y minus 6 and 8y plus 8 minus 5x square. सॉल्यूशन करते हैं इसका. ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 प्लस अंडर ब्रैकेट 8y प्लस 8 माइनस 5x स्क्वायर.
ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स टुगेदर वी गेट। अब दोनों में से लाइक टर्म्स लो। फर्स्ट हमारा है 7x², तो वहां पे कितना है -5x², एक साथ लिया, अंडर ब्रैकेट रखा, प्लस 5y, यहाँ पे y है, यस, 5y प्लस 8y अंडर ब्रैकेट रखा, प्लस अब जो कांस्टेंट है उनको लेंगे -6 प्लस 8। नाउ +7 एंड -5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, राइट तो इनके हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 7 - 5 x² प्लस 5 + 8 y प्लस -6 + 8 क्या हो जाएगा +2। 7 - 5 इज 2 +2 x² प्लस 5 + 8 इज 13y एंड 2। इस तरह से हम इजीली लाइक टर्म्स को टुगेदर एक साथ लाके सॉल्व कर सकते हैं। नो मोर। Unlike terms in an algebraic expression cannot be added. For example, we cannot add 3x and 7xy. Now, second is column method. Procedure. First, write each expression in a separate row in such a way that like terms are arranged one below the other in the same column. Second, now add the coefficients of each column. Example करते हैं इसका, example 1. Add the following: 5m² minus 6mn plus 8n², 3n² plus 8m² plus 2mn and 7mn plus 5n² minus 2m². Solution करते हैं. On arranging all expression one below the other in such a way that like terms should be in same column, we get. हमने क्या किया, हम सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को लिखेंगे 5m² minus 6mn and plus 8n². Now next में क्या है 3n², n² के नीचे n² लिखेंगे प्लस 3n² and plus 8m² plus 8m² and 2mn plus 2mn, राइट। थर्ड में क्या है 7mn प्लस 7mn, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक, आगे पीछे जैसे हमने अरेंज किया है, राइट, प्लस 5n² n² प्लस 5n² माइनस 2m², इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है, ऐड कर दो जो भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या है 5 + 8 - 2, 5 + 8 - 2, 5 + 8 13 एंड -2 करेंगे तो कितना बचेगा 11, तो 11m²। सेम ऐसे ही हम mn को करेंगे, क्या क्या है कोएफिशिएंट उसके -6 + 2 + 7, -6 नेगेटिव है अलग रखेंगे, दोनों पॉजिटिव है, 9 -6 + 9 कितना आ जाएगा 3 और mn इसका हमारा क्या है वेरिएबल, प्लस यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव है 8 + 3 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं कॉलम वाइज। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज मेजर्स ऑफ 3 साइड्स आर 3m + 2n - 6 centimeter, 2m + 6n - 4 centimeter and 4n + 8 + 5m centimeter. सॉल्यूशन करते हैं इसका। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सो पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स। सबका सम करेंगे, सबको हमने अरेंज कर दिया इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में, फिर अगेन वही करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे, m को एक साथ लिया 3m + 2m + 5m प्लस n को साथ लिया 2n + 6n + 4n प्लस कांस्टेंट को अलग लिया -6 - 4 + 8, 3 + 2 + 5 इज इक्वल्स टू 10m। नेक्स्ट क्या है 2 + 6 + 4 कितना हुआ 2 + 6 8, 8 + 4 इज 12, 12n एंड कांस्टेंट है -6 - 4 -10 + 8 -2 सेंटीमीटर। Hence the perimeter of the given triangle is 10m + 12n - 2 centimeter. Now apply your learning. Kirti purchased 5x + 9y + 10 meter cloth for curtains and 2x + y + 3 meter cloth for making covers of sofa.
हाउ मच टोटल क्लॉथ डिड शी परचेज। अगेन वैसे ही दोनों को या तो हॉरिजॉन्टल या कॉलम वाइज क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे और ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Like addition, we can subtract only like terms. Subtracting a term from another term is same as adding its additive inverse to the other term. For example, subtracting 5x from 9x is same as adding minus 5x to 9x. Example करते हैं. Subtract the following. A part 25x from 30x, B part minus 4p from 9p. सॉल्यूशन करते हैं. A part 30x minus 25x. 30x में से 25x को माइनस किया, 30 minus 25 is equals to 5x. 9p माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 4p, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 9p plus 4p is equals to 13p. Subtraction of algebraic expressions can also be done by two methods. These are horizontal method and column method. Now first is horizontal method. Procedure: first, write the expression in a row and change the sign of the subtrahend. Second, write the like terms together and subtract their coefficient. Example करते हैं. Example 1. Subtract 5m square n square from 8n square m square. Solution: 8n square m square minus 5m square n square is equals to, like terms है 8 minus 5, दोनों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को माइनस किया, 8 minus 5 is 3, 3m square n square. Example 2. Subtract 7x square y square from 9y square x square. Solution करेंगे इसका. 9y square x square minus 7x square y square. 9 minus 7 is 2. 2x square y square. Now example 3. Subtract 8x square minus 3x plus 4 from minus 10x square plus 4x minus 5. Solution करते हैं. Minus 10x square plus 4x minus 5 माइनस करना है अंडर ब्रैकेट 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. जब बाहर माइनस है तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. प्लस है माइनस, माइनस है प्लस. नाउ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, प्लस 8x स्क्वायर है, इट बिकम्स माइनस 8x स्क्वायर. माइनस 3x है, इट बिकम्स प्लस 3x. प्लस 4 है, इट बिकम्स माइनस 4. नाउ अगेन सेम वैसे ही करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे. माइनस 10x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ, 4x प्लस 3x एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, माइनस 5 माइनस 4. अब इनके न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं कोफिशिएंट्स हैं उनको प्लस माइनस करेंगे. माइनस 10 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स एंड माइनस 5 माइनस 4. माइनस 10 माइनस 8 इज माइनस 18, minus 18x, 4 plus 3 is 7, 7x and minus 5 minus 4 is minus 9. तो आंसर is minus 18x square plus 7x minus 9. No more. The difference of two like terms is a like term with a numerical coefficient equal to the difference of the numerical coefficient of the two like terms. Now second is column method. Procedure: place the subtrahend under the minend in different rows in such a way that like terms are in the same column. Second, change the sign of each term of subtrahend and add it to the minend. Example करते हैं. Example 1. Subtract 5mn minus 6m square plus 16n square from 8m square minus 3mn minus 15n square. Solution करते हैं. On arranging the given algebraic expressions in the column, we get. हम सबसे पहले जिसमें से जो हमारा माइनेंड है उसको लेंगे. 8m square minus 3mn minus 15n square. 15
एन स्क्वायर, माइनस करेंगे नीचे, अब हम सब्ट्राहैंड को लिखेंगे क्या है, एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 6 एम स्क्वायर, पहले एज इट इज लिखेंगे, देन एम एन 5 एम एन प्लस 5 एम एन एंड क्या हमारा एन स्क्वायर 16 एन स्क्वायर प्लस 16 एन स्क्वायर। अब जो हमारा सब्ट्राहैंड है उसके सारे साइन हम चेंज करेंगे, चेंजिंग द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ सब्ट्राहैंड, सब्ट्राहैंड के सारे साइन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, माइनस में है प्लस, प्लस में है माइनस, प्लस है माइनस, राइट। अब इनके कोफिशिएंट 8 प्लस, अब हम ये वाला साइन नहीं कंसीडर करेंगे, चेंज करने के बाद जो साइन किया उसको कंसीडर करेंगे, 8 प्लस 6 इज 14, 14 एम स्क्वायर, माइनस माइनस हो गए 3 माइनस, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, दोनों ऐड हो जाएंगे 8 एम एन, दोनों माइनस के हो गए, माइनस माइनस है ऐड हो जाएंगे 15 एंड 16, 15 प्लस 16 इज 31 माइनस 31 एन स्क्वायर। सो आंसर इज 14 m square minus 8 mn minus 31 n square. Now example 2. What should be added to 6a square plus 5b square minus 3ab to obtain minus 4b square minus 8a square plus 2ab? Solution देखते हैं इसका। इसने कहा है what should be added, तो let x should be added. Then 6a square plus 5b square minus 3ab plus x, और ऐड करने के बाद क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 2ab। x की वैल्यू निकालनी है, ये प्लस हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन को किस में रखेंगे, अंडर ब्रैकेट। नाउ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, एज इट इज x इज इक्वल टू माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ माइनस, अब 6a स्क्वायर प्लस में है माइनस में हो गया, माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर है माइनस 5b स्क्वायर एंड माइनस 3ab है, इट बिकम्स प्लस 3ab। नाउ लाइक टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, x इज इक्वल्स टू b स्क्वायर को एक साथ लिया माइनस 4b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को एक साथ लिया माइनस 8a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस ab को एक साथ लिया प्लस 2ab प्लस 3ab। नाउ 4 and 5 both are in negative form, then 4 plus 5 is 9 minus 9b square, minus 8 and minus 6 both are negative, 8 plus 6 is 14 minus 14a square and 3 and 2 both are positive, add हो जाएंगे plus 5ab, hence minus 14a square minus 9b square plus 5ab should be added. Now example 3. What should be subtracted from 2a plus 8b plus 10 to get minus 4a plus 3b plus 12? Solution करते हैं। Again let कर लेते हैं, let x should be subtracted. Then 2a plus 8b plus 10 minus x is equals to minus 4a plus 3b plus 12. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x किस में है, माइनस में, तो हम क्या करते हैं, 4a प्लस 3b प्लस 12 को क्या कर देते हैं, 2a प्लस 8b प्लस 10 में से माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, देखो 2a प्लस 8b प्लस 10 में से हमने माइनस किया x माइनस किया तो वी गेट माइनस 4a प्लस 3b प्लस 12। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को हम अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को हम ले आएंगे इधर, तो 2a प्लस 8b प्लस 10 अपोजिट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 4a प्लस 3b प्लस 12 इज इक्वल्स टू x अपोजिट साइड जाके दैट इज x की वैल्यू निकालेंगे। सेम यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, 2a प्लस 8b प्लस 10 माइनस है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस 4 है प्लस 4a प्लस है माइनस 3b प्लस 12 है माइनस 12। नाउ a एंड a, नाउ 2a प्लस 4a एक साथ, नाउ b एंड b प्लस 8b माइनस 3b
एंड कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस 10 माइनस 12, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6a प्लस 8 माइनस 3 माइनस हो जाएगा प्लस 5b, 10 माइनस 12 माइनस 2. दिस इज द आंसर. हेंस 6a प्लस 5b माइनस 2 should be added. हमें क्या ऐड करना है? This should be added. Now next is apply your learning. If 3p plus q is equals to 5x square minus 3y square plus 2xy, ये इसकी वैल्यू है और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? p की. p is equals to minus 2x square plus y square minus 6xy. Then find the value of q. हमें q की वैल्यू निकालनी है. इस p की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और अपोजिट साइड लेके हम क्या कर देंगे? q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. इसी तरह से एक्सरसाइज भी आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. The value of an expression can be found by substituting the given value of literals in the expression. For example, value of x square plus 2x plus 1 when x is equals to 5. यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5. तो जहां भी इस एक्सप्रेशन में x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 5. जैसे x स्क्वायर क्या है? x की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस 2x, x की जगह 5 रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 36. एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड. एग्जाम्पल 1, इफ x is equals to 3, find the value of a 2x plus 2, b 3x square minus 2x plus 7. सॉल्यूशन करते हैं इसका. वैल्यू ऑफ 2x plus 2 when x is equals to 3. हमें दे रखा है x की वैल्यू कितना? 3. तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 3. 2x तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8. आंसर इज 8. नाउ b, वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है? 3. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 and 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 3. नाउ 3 3 जा 9, 3 जा कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 6 इज 21, 21 प्लस 7 इज 28 इज द आंसर. 28 हमारा क्या रहेगा? आंसर. नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 20 इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3. सॉल्यूशन करते हैं इसका. x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 20, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2. जहां पे भी x है वहां हम क्या रखेंगे? 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3 और जहां पे भी y है वहां कितना रखेंगे? माइनस 3. इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी गेट. फर्स्ट है x स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है? 2. तो 2 स्क्वायर प्लस 5xy, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. x की जगह 2 और y की जगह माइनस 3 माइनस 20. नाउ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और माइनस का है तो माइनस 30 एंड माइनस 20 एज इट इज. सारे हमारे न्यूमेरिकल या कांस्टेंट नंबर्स आ गए. 4 माइनस 30 एंड 20 बोथ आर नेगेटिव तो ऐड कर देंगे माइनस 50, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 46. 4 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 46. नाउ एग्जाम्पल 3, find the value of a if 4x square minus 6x plus a is equal to 8 for x is equals to 2. सॉल्यूशन करते हैं इसका. पुटिंग x is equals to 2 in 4x square minus 6x plus a we get. जब हमने x की वैल्यू कितनी पुट की? 2 पुट की, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 8 के इक्वल. तो हम यहाँ पुट करते हैं 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a.
यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2, 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस a। जब हमने इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट की तो ये सॉल्यूशन आया इसका 8, ये हमें गिवन है, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू ज़ा 4 माइनस 6 टू ज़ा 12 प्लस a इज इक्वल्स टू 8, 4 4 ज़ा 16 माइनस 12 प्लस a is equals to 8, 16 minus 12 is 4, 4 plus a is equals to 8, a की वैल्यू निकालेंगे, 8 है, 4 अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा उसका, a is equals to कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आया हमारा 4। Now apply your learning. The area of a square is 5x square plus 6y square minus 4 square units. A triangle is constructed inside it of area 2x square plus 3y square plus 2 square units. Find the remaining area of the square. तो आप स्क्वायर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, आ जाएगा रिमेनिंग एरिया। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is multiplication a monomial by a monomial. Example A, multiply 12x and 4y. B, multiply 8m cube and 7m square n. Solution करते हैं इसका। A part 12x multiply by 4y, जो हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं, न्यूमेरिकल जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 4 और वेरिएबल्स को अलग करेंगे x इंटू वाई। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48 एंड xy इज 48xy। बी पार्ट 8m क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7m स्क्वायर n इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 m क्यूब मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n। नाउ 8 7 जा 56 और यहाँ पे हम बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये वाला लॉ हम यूज करेंगे, राइट। तो m 3 प्लस 2 पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 3 प्लस 2 इज m रेज टू द पावर 5 एंड n एज इट इज। तो आंसर इज 56m 5n। नाउ नो मोर। When we multiply algebraic terms, then first multiply the numerical coefficients, add the exponents of the same variables separately. Now next is apply your learning. Multiply first 12x multiply by 3yx. तो 12 multiply by 3 36 and x को x से करेंगे x square and y as it is. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए।